Hello, my dear student. Have a pleasant morning to one you all. I welcome you on a video lecture class. My student, we were started the chapter that was the March of Dandi. We have started it day 4 yesterday, and half of the chapter was completed. So, student, in this chapter we were studying a story that is related to Mahatma Gandhi and a campaign that is started that is called the March of Dandi. So we have seen that Gandhiji started his journey and 78 people were also there who were following him, and Gandhiji was running very fast, and the people and the British government were not able to believe. It was really hard to believe for them that he will start such type of the journey and that will be completed. So the people, so the British government were not taking any attention or paying more attention towards that. He was the government was not cautious about that Gandhiji was really started an effortless task. So Gandhi, he and his followers just kept marching. Gandhiji was 61 years old, but he walked very fast. His speed of walking was really, really fast. The others had to run to keep up with him, or they would be left behind. And the other people, 78 people, were also there. They were following him. So they had to run for to come beside him. The marches passed many villages and towns along the way. Whenever they started a journey, many villages and many towns came on the way. बहुत सारे गांव और towns means जो urban areas होते हैं that come. And the people in these villages and towns greeted Gandhiji and his followers with great excitement. The meaning of that excitement is written over here. The thing that we do with full energy or full enthusiasm, that is called the excitement. So people in these villages and towns greeted Gandhiji and followers with great excitement. And the people who belong to village areas and urban areas, they really greet them. They really welcome them. उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया. Flower garland and streamers were used to decorate the streets, and many flowers and the garland were also used to decorate the streets. Children sat on trees to keep a lookout of the marches, and the young children were sitting on the branches of the tree, and they overlooked that march. They would shout, I see them, and run to inform their families. And the children were saying there that I'm here to see you. बच्चे कह रहे थे कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ. And they were running very fast to inform their family members that the march of the Dandi is started, and the Gandhiji is the head of that campaign, and 78 people were also there. They were following him. And sometimes the marches would not stop to eat and rest. Sometimes the marches would stop. Sometimes they took some relaxation. They took a sigh of relief for some rest and for having some eatable items. Newspaper and radio reporters were moved by the Dandi march. There were also reporters and newspaper, radios. These people also came there, and they were following the Dandi march. They kept the people of the India informed about the progress of the Dandi march. So through this, how will the people come to know that the Dandi march is going on? By the news on television, on radio, and the newspaper. So they published these news, and the marches reached Gandhiji almost 1 month later. The marches reached Dandi almost 1 month later. So 1 month took for this campaign, for this march of Dandi. एक महीना लगा उसमें. Early in the morning of the 6th April, Gandhiji walked into the water of Arabian Sea. So Gandhiji, early in the morning on the April of the 6th, Gandhiji walked gay water of the Arabian Sea. He bent down and picked up a lump of salt. थोड़ा सा salt अपने हाथों पे लिया.
किया उन्होंने, उठाया। Everyone there cheered and shouted loudly, "Gandhi ji ki jai." Gandhi ji had broken the salt law. Everybody was there, and everyone was shouting very loudly. Everyone was shouting very loudly, and he was appreciated. Gandhi ji. Gandhi ji had broken the salt law. Gandhi ji had broken the namak kanun. Gandhi ji ne thoda. There was a signal for the people of India. Everywhere people made salt in pots and pans. So when the Gandhi ji had broken the salt law, there was a signal. There was a agreement for the people of India that they had approval of making their salt, and they had a permission to sell the salt, and the people made salt in pots and pans. Pots and pans are such type of the vessel in which you make salt. Boldly, openly, the people of India challenged the British government. Boldly means with courage, with enthusiasm, and they were very bold. They were enough bold to face the British government, है ना? तो British government को face करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे, और British government को उन्होंने challenge किया. That was the open challenge for the British government that the Indian people were doing. Of course, the government reacted with force. So when the British government saw that thing, he was really surprised to see that thing. He was really astonished to see that thing, and he really did a lot of things against Indian people. They destroy all the salt and pans they found. So whatever they found, they really destroyed. They demolished all things, सबको खत्म कर दिया. But the people resisted them to do by their action, by their thoughts, by their ideas. They prevent all the things, all the doings that were doing by the British government against Indian people. So they didn't move to see the horrible action and the awful action that was doing by the British government. Of course, no matter how many salt pans were destroyed, जितने salt pans destroy कर रहे थे British government, उतने ही ज़्यादा वो लोग वापस लेकर आ रहे थे. No matter how many people were arrested, more of it. जितने ज़्यादा लोग arrest किए जा रहे थे, many of the people came into the prison, jail भेजे जा रहे थे, sent into the prison. But many of the people came there. बहुत सारे लोग वहाँ पर आ रहे थे. Thousands of men and women just joined this movement. This was a campaign. This was a movement. Thousands of the people and men joined there. Nearly 1 year later, on March 1931, the Gandhiji Irving Pact was signed. The Gandhiji Irving Pact has written the Viceroy of India, Lord Irving. He had written this one. So it was signed on March 1931. Gandhiji's Irving Pact was signed at Delhi on March 1931. The British had to give in to many Indian demands. So the British government had to surrender. The British government had to surrender before Indian people, because the Indian people are so energetic, so enthusiastic, full of energy, and this was the support of the Gandhiji. This was the support of the Gandhiji because of his contribution, because of her way of truth and non-violence. The people are very excited. The people are very courageous and bold. So the British government had to surrender. The British government had to yield before Indian people. One of these was that Gandhiji, that Indian would make more salt. So the result of the Gandhi March was that. The result was that the Indian people are allowed to make their own salt. They have a permission to sell their own salt to Indian people without any taxes. Fine. So what guns and soldiers could not do, Gandhiji had done quietly and patiently. Patiently and passion से, quietly means with peace, शांति से. So जो एक weapons या violence जो चीज़ नहीं कर सकती है, मान लीजिए suppose that कि जो बंदूक और soldiers जो काम नहीं कर सकते थे, वो काम किसने किया?
was really unbelievable. Fine. So student, you have seen that the march of the chapter is finished now. The march of the Gandhi. Through this chapter, we came to know about the characteristics of the Gandhiji. That he was very good person. He was very courageous. He was the person who believed in truth. He always speak the truth, and he always follow the way of non-violence. He was not violent person. Fine. So through this chapter we came to know that many more difficult things, even the unbelievable and impossible things can be done by our hard work, by our energy, by our enthusiasm, and by our optimistic type of the view. So student, this is the chapter, and the question answer, you will get the question answer as a booklet form. The type notes you will get, and the exercise I'll do in your next lecture. The exercise means the FID, true, false, all the things you will do. So this is enough for you today. Till then, thank you and have a nice day to all you all. Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर 3 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इससे पहले के वीडियो में कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं उसी के आगे के टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूँगी। सिंधु घाटी सभ्यता एक वो सभ्यता थी जो लगभग आज से 4500 वर्ष पहले हुई थी। स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? जो आज से लगभग 4500 वर्ष पहले हुई थी, तथा इसे सबसे बड़ी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले जो नगर थे वो क्या थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। माने सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय दो प्रमुख नगर थे। पहला क्या था? हड़प्पा, और दूसरा क्या था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। माने ये सबसे पहले नगर के रूप में मुझे देखने को मिले। इन नगरों माने अब ये दोनों नगर माने इस नाउ इन प्रेजेंट टाइम माने इस समय ये दोनों नगर कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। अंडरस्टैंड? इन माने सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4500 वर्ष पहले अलंकृत हुई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी आज से 4500 वर्ष पहले मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जो इस समय प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? पूरी तरह से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता का मतलब क्या है? सारी जो व्यवस्थाएं थी वो क्या थी? शहरों की तरह थी। माने पूरी व्यवस्था जो थी वो नगरीय थी, शहरों जैसी थी। यहाँ की जो सड़कें थी माने जो इस माने सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे बहुत अच्छी तरह बसाए गए थे। इन नगरों की सड़कें जो थी काफी चौड़ी थी, और ये सड़कें एक दूसरे को आपस में काटती थी। माने एक दूसरे को आपस में काटती थी। तथा मोहनजोदड़ो की प्रमुख सड़क जो थी वो 800 मीटर लंबी, यानी मोहनजोदड़ो की जो सड़क माने मोहनजोदड़ो की जो सड़क थी वो कितनी? 800 मीटर लंबी, 800 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी थी। 10 मीटर चौड़ी थी, यानी मोहनजोदड़ो में जो सड़कें भी थी वो क्या थी? माने नगरीय व्यवस्था थी, सड़कों का अच्छी तरह से शासन था, तथा ये सड़कें जो थी वह काफी चौड़ी थी। यानी मोहनजोदड़ो की जो सड़क थी वो क्या थी? 800 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी थी, तथा ये सड़कें एक दूसरे को आपस में काटती थी। अब हम बात करते हैं कि ये सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो तथा यानी दोनों नगर जो क्या थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों
बाहर माने सीमा को बाढ़ से बचाने के लिए, माने बाढ़ से बचाने के लिए क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे थी। सिंधु नदी की बाढ़ से यानी उन समय नदियों माने कई नदियां जो थी वह तो इस समय माने दुर्ग क्यों बनाए जाते थे? माने नगरों को माने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों को बाढ़ से बचाने के लिए यानी दुर्गों का निर्माण किया जाता था, जिसमें काफी ऊंची और ठोस दीवारों का निर्माण किया जाता था। इन दुर्ग से बनाने के लिए इन दुर्ग में क्या होते थे? विशाल स्नानागार होते थे जो आयताकार बने होते थे, तथा इन स्नानागार जो थे वो इतने बड़े थे कि यहाँ तैरने तक की भी व्यवस्था होती थी, तथा इनके अंदर की जो दीवारें थी माने जो स्नानागार के अंदर की दीवारें थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। नाउ डिस्कस की पहला आप क्या पढ़ चुके हैं? दुर्ग। दूसरा पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं निचले शहर। निचले शहर से क्या तात्पर्य था? तो निचले शहर से तात्पर्य ये था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो प्रमुख नगर थे उसमें निचले शहर का मतलब था कि दुर्ग के बाहर माने दुर्ग के बाहर की तरह निचले शहर भी बने हुए थे। जो दुर्ग के बाहर का हिस्सा था वो क्या था? निचले शहर के नाम से जाना जाता था। माने दुर्ग क्या था? दुर्ग ऊंची दीवारों तथा पत्थर की दीवारों से बने माने बाउंड्री से बना हुआ एक स्टेट जगह थी, तथा दुर्ग के बाहर का जो प्लेस था, जो दुर्ग के बाहर के स्थान थे उन्हें निचले शहर माने निचले शहर बने हुए थे। इन शहरों में क्या था? किसानों, व्यापारी, मजदूरों द्वारा बसाया गया था। माने इन निचले शहरों में उस समय रहने वाले जो थे किसान, व्यापारी, मजदूर, कई तरह के लोग इन निचले शहरों में रहते थे। इसका मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की सभ्यता में क्या थे? स्नानागार बने हुए थे, धान्यागार बने हुए थे। धान्यागार का मतलब क्या है? जहां किसान अपने अन्न माने उगाए हुए अनाज को एकत्रित करते थे उसे क्या? धान्यागार माने अन्न का संग्रह करते थे उसे धान्यागार कहा जाता था। निचले शहर में क्या था? जो भी दुर्ग के बाहर का प्लेस था उसे निचले शहर के नाम से जाना जाता था। इन शहरों में किसान माने जो खेती करते थे, व्यापारी जो सामान का क्रय विक्रय करते थे, व्यापारी, मजदूर माने जो किसानों और व्यापारियों के यहाँ मजदूरी करते थे उनके द्वारा निचले शहर बसा हुआ था। इनके जो घर थे माने इस सभ्यता में जो घर थे वो क्या थे? एक मंजिल तथा दो मंजिलों के भी बने होते थे। माने सिंधु घाटी सभ्यता की बिल्डिंग्स माने जो इमारत थी वह एक मंजिल की भी तथा दो मंजिलों के भी बने होते थे। ये मुझे पता चलता है। माने सिंधु घाटी सभ्यता से ये पता चलता है कि ये सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से नगरी थी। विशाल स्नानागार थे, धान्यागार थे, तथा जो भी बिल्डिंग्स माने जो भी इमारत बनी होती थी वह पक्की ईंटों से बनी होती थी, और ये इमारतें यानी जो मुख्यतः ये जो इमारत थी वह एक मंजिल या दो मंजिल की भी थी। इन घरों में माने जो घर बने होते थे जो एक मंजिल या दो मंजिल के बने होते थे, इन घरों में निकासी का अच्छा इंतजाम था। निकासी का मतलब क्या है? पानी के निकलने का। जो भी मतलब व्यक्ति पानी घर में प्रयोग करते थे उस पानी को निकलने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर निकासी की अच्छी व्यवस्था है तो हमारी क्या होगी? सड़कों की व्यवस्था अच्छी होगी। तो इस समय बड़े सिंधु घाटी सभ्यता में पानी निकासी माने जो भी घरों से पानी निकलता था उसका अच्छा इंतजाम था। इसका मतलब ये था कि सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई थी, तथा हर घर में माने जो भी घर थे हर घर में एक रसोई होती थी। स्नानागार में जो नालियां थी वो सड़क के नालियों से जुड़ी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी व्यवस्था हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो क्या थी? पूरी तरह से नगरी थी। हर घर में एक रसोई होती थी। स्नान गृह माने जो भी हमारे स्नानागार होते थे, इन स्नानागार की जो नालियां होती थी वह सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। इसका मतलब ये था घरों का पानी आसानी से बाहर निकल जाता था। अब हम बात करते हैं मनुष्य जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता माने सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्यों का जीवन क्या था? मनुष्य किस तरह से अपना जीवन जीते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्यों ने अनेक व्यवसायों को अपनाया था। माने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मनुष्य थे उन्होंने
कृषि के कार्य के अंतर्गत ही आता है। तो कुछ मानव ऐसे थे, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो मनुष्य थे वो क्या थे, किसान थे, जुलाहे बड़े जो जुलाहे थे, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, सुनार व्यापारी तथा शिल्पकार जो थे वह इस समय मनुष्य का जो जीवन था वह पूरी तरह से व्यवसायी था, माने अलग अलग तरह के व्यवसाय करते थे। तथा इनमें जो किसान थे, जुलाहे थे, कुम्हार, सुनार व्यापारी और शिल्पकार थे। तथा शिल्पकार जो उस समय पत्थर को रगड़कर यानी पत्थर रगड़कर शिल्पकला का काम करते थे। यह भी माना जाता है कि इन माने सिंधु घाटी सभ्यता के जो मनुष्य थे, सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले शिल्प के माध्यम से यानी पत्थरों के माध्यम से कई शिल्पकारी करते थे। तथा ये किसान सामान्यतः जो किसान होते थे वो गेहूं, बाजरा, मटर, जौ माने कई तरह की अलग अलग फसलें भी उगाते थे। माने सिंधु घाटी सभ्यता के किसान उस समय अपनी खेती में गेहूं, जौ, बाजरा तथा अन्य तरह के अन्य तरह की फसलों का उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो किसान थे वह कृषि कार्य में उस समय हसिया, हल तथा कई ऐसे चीजों का प्रयोग करते थे जो उनके कृषि कार्य में उनके साथ सहायक होती थी। जैसे हसिया था फसल को काटने के लिए, हल खेत को जोतने के लिए, इस तरह से प्रयोग करते थे। शहर में जो भी निवासी थे, माने शहर में जो भी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, शहरी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी शहरी व्यवस्था थी उसे अन्न जो था वह किसानों द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता था। माने किसान जो होते थे वो क्या करते थे, अन्न शहरों तक पहुंचाते थे। तथा सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी व्यक्ति थे वो क्या भैंस, बकरी, भेड़ तथा कई तरह के छोटे छोटे पालतू जानवर भी पालते थे। माने सिंधु घाटी सभ्यता के जो किसान थे वह भेड़, बकरी तथा भैंस आदि पालतू जानवर भी पालते थे। आगे हम बात करते हैं मिट्टी के बर्तन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, मिट्टी के बर्तन बनाने में अभ्यस्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो भी था मनुष्य क्या करता था, अन्न का उत्पादन उसके पास बहुत कम था, तो उसे स्टोर करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती थी। किंतु जब वह किसान बन गया और उसने अन्न उपजाना स्टार्ट किया तो अन्न का उत्पादन करने के साथ उससे क्या था कि अन्न का स्टोर करने के लिए तथा अन्य काम के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी, तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किया था। और अब यानी सिंधु घाटी सभ्यता तक वह मिट्टी के बर्तन बनाने में पूरी तरह से अभ्यस्त हो चुका था। लाल मिट्टी के नक्काशीदार बर्तन भी बनाए जाते थे। माने धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उसने अपनी कला को और भी विकसित किया था और वह इन मिट्टी के बर्तनों पर यानी नक्काशी भी बनाने लगा था या नक्काशीदार बर्तन भी बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, इन नगरों में मोहर बनाने की एक खास कला प्रचलित थी। लोग मोहर बनाने के भी बहुत अधिक शौकीन थे और ज्यादातर जो ये मोहरें बनी होती थी वो कैसी थी, चौकोर थी और आयताकार थी। माने जो मोहर को बनाते थे वो कैसी होती थी, चौकोर होती थी अथवा आयताकार होती थी। और इन मोहरों के ऊपर माने इन मोहरों पर सांड, चीता, बकरी, हाथी आदि जानवरों के चित्र बने हुए थे। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह मोहर बनाने के बहुत अधिक शौकीन थे। वह इन मोहरों को चौकोर तथा आयताकार बनाते थे। इन मोहरों पर कई जानवरों जैसे क्या था, सांड था, चीता था, बकरी थी, हाथी थे, कई तरह के जानवरों के चित्र बने होते हैं। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय माने ये जानवर भी उनके माने सांड, चीता, बकरी आदि जानवर भी उनके पालतू जानवर माने आदि जानवर भी उस समय उनकी माने वहाँ माने इन जानवरों की भी पहचान से हो चुकी थी। मिट्टी के बर्तन के बाद अब हम बात करते हैं उपकरण और शास्त्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह उपकरण और शस्त्र भी प्रयोग करने लगे थे। उपकरण का मतलब यह है कि वो उस समय उपकरण
माध्यम से आपको कई अगले माने नेक्स्ट अगले पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सुस्वागतम। मैं रेणु लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी क्लास 6 हिंदी मीडियम, आप लोगों का हिंदी मीडियम है ना, हिंदी मीडियम के बच्चों को तृतीय पाठा यानी तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है आम नहीं चा। शीर्षक का अर्थ पहले समझ लें। आम का मतलब होता है हाँ, ये आम का मतलब खाने वाला आम नहीं। आम में माँ में हलत है, इसका मतलब है आम मीन्स हाँ। नहीं मीन्स नहीं, चा मीन्स और, यानी शीर्षक का पूरा अर्थ हुआ हाँ और ना। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में आप 2 श्लोक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ याद करने हैं, और ये शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो आप शब्दार्थ पहले जरूर याद करें, क्योंकि आपको जब शब्दार्थ याद होंगे तो इन संस्कृत की पंक्तियों का अर्थ समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो शब्दार्थ याद करने के बाद आपको इन संस्कृत पंक्तियों का अर्थ भी लिखना है। ऑलरेडी 2 पैसेज मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तीसरा देखिए, जब भी हम अर्थ लिखेंगे तो संकेत जरूर डालेंगे। संकेत का मतलब होता है कि हम कहां से कहां तक का अर्थ लिख रहे हैं। जैसे ये पहला वर्ड किम और लास्ट है अस्मि, ये मैंने संकेत डाला है, तो इसका मतलब हम यहां से यहां तक का अर्थ लिखने जा रहे हैं। और फिर हेडिंग डालेंगे अर्थ। ठीक है, संदर्भ आप स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के आम नहीं चा पाठ से ली गई। क्लियर? और फिर संकेत डालेंगे अर्थ लिखने के बाद बच्चों, ये संस्कृत की पंक्तियां जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं, ये आपको अपनी नोटबुक पे नहीं लिखनी है। वो मैं तो इसलिए लिख रही हूँ कि क्योंकि मुझे इसका अर्थ पढ़ाना है। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में ये संस्कृत की पंक्तियां नहीं उतारनी है, ये ऑलरेडी आपकी बुक से ही ली गई है। तो आप अर्थ हेडिंग डाल के सिर्फ इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ लिखेंगे, इतना समझ लें। तो मैं इन पंक्तियों को पढ़ रही हूँ, और यहाँ पर जहां मैंने संस्कृत की पंक्तियां लिखी, यहाँ आपको इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ लिखना है। किम त्वं शूकरः असि। किम मीन्स क्या, तुम, शूकरा मीन्स सुअर, असि मीन्स हो, क्या तुम सुअर हो। नहीं मीन्स नहीं। अहम शूकरः न अस्मि, मैं सुअर नहीं हूँ। अस्मि मीन्स हूँ और असि मीन्स हो, क्या तुम सुअर हो। नहीं, मैं सुअर नहीं हूँ। तदा मीन्स तब, कथे मीन्स कहो या बताओ। त्वं कहाँ सी, तुम कौन हो। अहम गंडकः अस्मि, मैं गैंडा हूँ। गंडकः मीन्स गैंडा। क्या तुम सुअर हो। नहीं, मैं सुअर नहीं हूँ। तब कहो या तब बताओ। त्वं मीन्स तुम, कहाँ सी, तुम कौन हो। अहम गंडकः अस्मि, मैं गैंडा हूँ। फिर दूसरा संकेत है बच्चों, किम से लेकर के वसामि तक। ठीक है, संकेत डालेंगे, फिर हिंदी अर्थ लिखेंगे इसका। किम त्वम अश्वः असि, क्या तुम, अश्व मीन्स घोड़ा, क्या तुम घोड़ा हो।
नहीं, नहीं मीन्स नहीं। ये नहीं शब्द जो है वो संस्कृत में है। जब आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी का शब्द लिखेंगे नहीं, ठीक है। नहीं अहम अश्वः नास्मि, नहीं मैं घोड़ा नहीं हूँ। तरही, तरही मीन्स तो, ये देखिए ई की मात्रा के साथ जो है वो रा लगा हुआ, ठीक है। तरही इसको बोलते, तरही मीन्स तो। त्वम कहासी, तुम कौन हो। कुत्र चा वससि, चा मीन्स और कहाँ रहते हो। तो तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। अहम उष्ट्रः अस्मि, मैं ऊंट हूँ, मैं ऊंट हूँ। अहम सिक्ता भूमौ वसामि, मैं रेगिस्तान, सिक्ता हूँ मरुस्थल या रेगिस्तान। अहम सिक्ता भूमौ वसामि, मैं रेगिस्तान में, वसामि मीन्स रहता हूँ, मैं रेगिस्तान में रहता हूँ। क्या तुम घोड़ा हो, नहीं मैं घोड़ा नहीं हूँ। तो तुम कौन हो, कुत्र चा वससि, और कहाँ रहते हो। तो तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। अहम उष्ट्रास्मि, मैं ऊंट हूँ, मैं रेगिस्तान में रहता हूँ, वसामि रहता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये दो पैराग्राफ का अर्थ हो गया है, ओके। हाँ बच्चों, अब आइए ये लास्ट पैसेज है इस चैप्टर का। इसका संकेत है किम से लेकर धार्यामी तक के, देखिए किम और धार्यामी, यानी आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अर्थ पढ़ेंगे। किम त्वम यू ऊर्विकाम धार्यसि, ऊर्विका कहते हैं अंगूठी को। किम मीन्स क्या, तुम मीन्स तुम, क्या तुम अंगूठी पहनती हो। धार्यसि धारण करती हो या पहनती हो। क्या तुम अंगूठी पहनती हो, नहीं मीन्स नहीं। अहम ऊर्विकाम न धारयामि, मैं अंगूठी नहीं पहनती हूँ। तदा तब, कथे मीन्स कहो या बताओ। तब बताओ तुम किम धार्यसि, तुम क्या पहनती हो। अहम लालंतिकाम धारयामि, मैं माला पहनती हूँ। क्या तुम अंगूठी पहनती हो, नहीं मैं अंगूठी नहीं पहनती हूँ। तदा मीन्स तब, कथे तब बताओ, तुम किम धार्यसि, तुम क्या पहनती हो। अहम लालंतिकाम धारयामि, मैं माला पहनती हूँ। तो बच्चों ये तीनों पैसेज जो मैंने संकेत डाला है, ये इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। मुझे आशा है कि मैंने जो पहले पढ़ाई है पंक्तियां, संस्कृत की पंक्तियां, उनका हिंदी अर्थ आपने लिखा होगा। इन पंक्तियों का भी हिंदी अर्थ आप लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखें, फिर मैं बता रही हूँ कि ये संस्कृत की पंक्तियां आप कॉपी में नहीं उतारेंगे, सिर्फ संकेत के बाद अर्थ हेडिंग डालेंगे। हर जगह संकेत के बाद अर्थ हेडिंग डालेंगे। तो संस्कृत पंक्तियों का अर्थ लिखना है। ये संस्कृत पंक्तियां आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपनी नोटबुक में इंडेक्स जरूर बनाएं और अपना जितना भी लेखन कार्य है वो बहुत शुद्ध और स्वच्छ रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। आपका लेखन कार्य बहुत सुंदर होना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. साइंस क्लास में 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने साइंस में पाठ 3 भोजन के घटक का लगभग अध्ययन कर लिया है। इस पाठ में अब संतुलित भोजन से आप क्या समझते हैं या संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी प्रकार के या संतुलित आहार वह आहार है
जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सही अनुपात में तथा सही मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अगर एक या एक से अधिक तत्वों की कमी आहार में हो जाती है तो उस कमी के कारण शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रकार से संतुलित भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, जल आदि सभी आवश्यक तत्व एक निश्चित अनुपात में तथा सही मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से भोजन, संतुलित भोजन करने के लिए भोजन में सब्जियां भी होनी चाहिए, जिससे विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, और सब्जियों के अलावा दाल भी होनी चाहिए, दाल युक्त या प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए। कटे फल भी होने चाहिए, पके फलों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, सलाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने भोजन में ये सभी, कुछ जड़ वाली भी सब्जियां होनी चाहिए, पत्ते वाली भी सब्जियां होनी चाहिए, दालें भी। इस प्रकार से यानी सभी हमारे पास, हमारे भोजन में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन्स आदि सभी फैट, वसा है, संतुलित मात्रा में होने चाहिए, जिससे हमारे शरीर में किसी भी तत्व की अधिकता ना हो, लेकिन कमी तब भी ना हो, जिससे शरीर में बीमारियां उत्पन्न ना हो। तो ये होता है संतुलित आहार। अब दूध के बारे में देखते हैं। तो अगर हम दूध के बारे में कहें तो मिल्क इज गुड फूड। दूध को हम कह सकते हैं मिल्क इज गुड फूड बट नॉट कंप्लीट फूड। दूध एक बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन ये पूर्ण भोजन नहीं है। दूध में बहुत सारी चीजें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जो शरीर को आवश्यकता होती है, ये चीजें मिलती हैं, लेकिन सभी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो दूध भी संतुलित होना चाहिए हमारे भोजन में। तो इस प्रकार से अगर पोषक तत्व सही अनुपात में, सही मात्रा में नहीं है तो फिर भोजन संतुलित नहीं है। तो इस प्रकार से संतुलित भोजन के बारे में आप समझ गए हैं। अब आता है अभ्यास का। अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहले है सही विकल्प पर सही विकल्प पर उचित चिन्ह लगाइए, लगाओ। तो इस प्रकार से सही विकल्प पर उचित चिन्ह लगाने के लिए आप देख सकते हैं अभ्यास काल में सही विकल्प पहला है शारीरिक तापमान को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है। पहला पार्ट है शारीरिक तापमान, तापमान या ताप को निम्न में से नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब इसमें देखना है कौन नियंत्रित करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है विटामिन ए, लौह तत्व, पानी और प्रोटीन। तो पानी थर्ड पार्ट है इसका, पानी। पानी हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यानी पानी हमारे शरीर में 70% वाटर होता है। 70% वाटर in your body, available in your body। खा नंबर है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में सूजन तथा दांत कमजोर हो जाते हैं।
नंबर 2, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में सूजन एवं दांत कमजोर हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपका विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो विटामिन सी की कमी के कारण विटामिन सी, यानी इसका ऑप्शन तीसरा सही है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है या मसूड़ों में सूजन आ जाती है। और मसूड़ों में सूजन आने से क्यों सूजन आई है? क्योंकि अंदर सड़न उत्पन्न हो रही होगी, इसलिए तो दांत भी कमजोर हो जाते हैं। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड में है शरीर के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है? शरीर के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन ऐसे ही देखें कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यानी यकृत। तो शरीर के यकृत हमारे दाएं तरफ पसलियों, यानी डायाफ्राम के नीचे की ओर पसलियों के जहाँ से ब्लास्ट होता है उसके थोड़ा सा ऊपर की ओर वो स्थित होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। आंसर क्या मिल गया? यकृत। आंसर हो गया यकृत। तो शरीर के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है? तो आंसर मिल गया यकृत। ठीक। अब आता है घ नंबर। घेघा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? नंबर 4 है घेघा रोग। किस तत्व की कमी से होता है? अब पहले तो घेघा रोग क्या है? घेघा रोग का मतलब है गर्दन में यहाँ स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे आगे फूल जाता है। तो घेघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। और इसमें ऑप्शन है आपका 7। पहले है लौह, फिर दूसरा है कैल्शियम, फिर तीसरा है आयोडीन, फिर चौथा है सोडियम। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग उत्पन्न हो जाता है। अब आयोडीन हमको मिलता किससे? वैसे गंगा और यमुना के बीच के मैदानी भाग में मुख्यतया आयोडीन की कमी नहीं हो सकती है, परंतु यहाँ आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक मिलता है, जिसको लोग खा करके आयोडीन की कमी को पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार से आयोडीन प्रचुर मात्रा में सिंघाड़े में पाया जाता है। कच्चा जो हरा सिंघाड़ा आता है, उस सिंघाड़े में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर साल में 2-4 बार कोई सिंघाड़े खा लेता है तो उसके आयोडीन की कमी लगभग पूरी हो जाती है। उसे फिर आयोडीन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आयोडीन तत्व तो बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, बहुत अधिक मात्रा में इनकी जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला अभ्यासकार का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, अब ये एक और है,
निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा मछली, दूध, अंडे, सोयाबीन इनमें होती है। तो मोस्टली मछली में तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। लेकिन शुद्ध शाकाहारी व्यक्तियों के लिए जो मछली अंडे नहीं खाते हैं उनके लिए सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वैसे तो मछली में पाया जाता है, लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी हैं उनके लिए सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है सत्य एवं असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य एवं असत्य कथन। असत्य कथन, अब इनको हम लिखेंगे नहीं, आपको हम पढ़ देंगे, आपको बता देंगे। जैसे पहला नंबर है भोजन रेसे भोजन को की पाचन क्रिया में सहायक है। रेसे भोजन की पाचन क्रिया में सहायक है, तो बिल्कुल सही है, सत्य है। अब रेशा कोई हमको न तो विटामिन्स देता है, न मिनरल्स देता है, न ही उसमें कोई तत्व आपको उपलब्ध होते हैं। रेशे का काम ये है कि जो भोजन आपने किया हुआ है उस भोजन को आंतों की दीवार से चिपकने नहीं देता है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है या पाचन अच्छा रहता है। इसलिए भोजन में रेशे की मात्रा भी आवश्यक होती है। नंबर 2, घुलनशील पदार्थों को बाहर निकालने में पानी सहायक है। तो ये भी एकदम सही है, क्योंकि पानी में घुलनशील पदार्थ घुल करके और फिल्ट्रेशन के द्वारा यूरिया और यूरिक एसिड बनने के बाद उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो सत्य है। हमारे शरीर में रक्त लौह का घटक है, सत्य है। आयरन यानी रक्त में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए सही है। फलों और सब्जियों को काटने के बाद उन्हें धो लेना चाहिए, ये तो बिल्कुल असत्य है। फलों को काटने के पहले ही धोना चाहिए, काटने के बाद उन्हें धोना नहीं चाहिए। नंबर 6 है असंतुलित आहार को। संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है, सत्य है। फिर रिक्त स्थान है, पहला नंबर है रिक्त स्थान में है को शारीरिक निर्माणक भोजन कहते हैं, तो प्रोटीन भरा जाएगा। दूसरा है लौह, खाली स्थान का एक घटक है, तो रक्त का एक घटक है। और तीसरा है नाइट्रोजन, खाली स्थान में एक महत्वपूर्ण तत्व है, प्रोटीन। चौथा नंबर फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा खाली स्थान तो विटामिन होते हैं। अत्यधिक भोजन से अफारा नामक बीमारी हो जाती है। दालें प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास कार्य भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों की इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।